Hi guys, I'm Roshan Nandurkar and you're watching my YouTube channel Java and Python Geek. If you still not subscribe my YouTube channel, I will request you to please click on subscribe button and turn on the notification that you will get our some new tutorials guys. Okay, you will not miss those one. So let's start our contents. So in the previous session, we discussed Spring MVC project there. So in that session, we discussed how to create a login form. How to create a login form we discussed there guys. So now in this session what we have to discuss how to validate user to to get the index page guys. Okay, to jump on index page. Okay, or to return back on login page guys. So first of all, what we have to do here, we will open our database, and for that I will say I will open my database. Our database is MySQL. So we will open database here. And what is our database here? So we have our database Spring MVC test guys. Spring MVC test. This is our database guys. So now you can see we have only persons table guys. We have persons tables here. So for that, what we will do, we will we will uh, create new users model class here. New users model class here. So for that, I will click on model package, and here I will create new users class guys. So now हमने users class create कर लिए. Now what we have to do here, I will write entity annotation on the top of the class. We have to write because okay, we are using Hibernate here. So now entity annotation we will use here guys. And now we will write id annotation, then temporal annotation for date. Okay, so all that thing we will copy from persons model class, and I will paste it here. Now to primary key, we need to have id column, then the username. We no need to have age for user, so I will delete this field. Then phone I will delete, and then I will say private string email, and then password. So only okay, these many fields we will add here. बाकी अगर आपको लगा कि कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपको ऐड करनी है, so you can add those field guides. So now I will right click in class, and then I will select a source option, and then I will generate getter setter here. So I will select all, I will click on select all, and then after I will click on OK button. So now this users class we will map in hibernate.cfg file. हम ये hibernate.cfg फाइल के अंदर में ये यूजर्स क्लास जो है ये मैप कर लेते गाइस. Okay, we will say users here. Okay, because our users class okay is coming from which package, org.test.model. यहाँ से हमारा users class आ रहा है. So now I will run this. हम ये रन कर रहे गाइस. रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट. नाउ चेक करते गाइस कि यूजर्स नाम का मॉडल क्लास जो है ओके, इट मींस डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ. ओके, आई विल रिफ्रेश. हम लोग रिफ्रेश करते. नाउ यू कैन सी गाइस स्टिल हमारा यूजर्स टेबल जो है ये क्रिएट नहीं हुआ. सो आई थिंक हमें टॉमकैट के अंदर से ओके प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट जो है ये रिमूव करना रहेगा. सो आई विल रिमूव दिस. ओके, एंड नाउ वंस अगेन हम इसे रन करते. इसे रन एज ऑन सर्वर.
वन सेकेंड चेक करते कि यूजर्स, नहीं फिर भी नहीं बना। सो कुछ मिस्टेक हो गई। व्हाट इज अवर डेटाबेस? Database is Spring MVC test, guys. Okay, fine. Users model class. This is also fine. Users, entity ID and so on. हमने इसको मैप भी कर दिए। हमने इसको मैप भी करा है। ओके, सो रिफ्रेश करके देखते हैं। नॉट। सो फॉर दैट वंस अगेन हम सर्वर के अंदर में आते और यहाँ से ये हमारा प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट को हम रिमूव कर देते एंड देन ओके सर्वर को स्टॉप, तो ये स्टॉप करना था हमने पहले ही। तो देन उसके बाद में ओके सर्वर के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट थे हमने रिमूव कर दिए, स्पेशली ये प्रोजेक्ट। एंड देन आफ्टर हम सर्वर को क्लीन करते। ओके, प्रोजेक्ट में आते, बिल्ड ऑटोमेटिकली, प्रोजेक्ट मेनू के अंदर में आके बिल्ड ऑटोमेटिकली टिक ऑप्शन हमने हटा दिए। वंस अगेन सर्वर को क्लीन करते एंड देन यहाँ पे हम बिल्ड प्रोजेक्ट करते गाइस। ओके, तो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ओके, सो चेक करते कि अभी हमारा यूजर्स मॉडल क्लास जो है ये टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। हाइपरनेट थ्रू ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट, टेबल हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। नॉट। ओके, अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। सो हाइपरनेट डॉट सी एफ जी build a project, then run as on server। ओके, सो हमने फिर से प्रोजेक्ट को बिल्ड करा एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, सो आई थिंक हमने डेटाबेस का इंस्टेंस अभी तक के यूज नहीं करा यहाँ पे, तो मे बी वो इसलिए डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट नहीं हो रहा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम डेटाबेस का इंस्टेंस हम वहाँ पे यूज करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको ये लॉगिन कंट्रोलर है और टेबल हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स, व्हाट वी विल से गाइस, एक्सटेंड्स। ओके, एक्सटेंड्स पैरेंट कंट्रोलर। ओके, एंड implements parent interface। ओके, implements parent interface। सो पैरेंट कंट्रोलर एंड पैरेंट इंटरफेस की सभी प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। सो देन आफ्टर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि डेटाबेस का इंस्टेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो डेटाबेस का इंस्टेंस हमें मिल रहा है पैरेंट, नॉट फ्रॉम पैरेंट कंट्रोलर। हमें डेटाबेस का इंस्टेंस मिल रहा है पैरेंट इंटरफेस से। तो पैरेंट इंटरफेस के अंदर में हमारे पास में एसएफ है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ओके एसएफ डॉट, ये डेटाबेस का हम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो मे बी इसलिए वो टेबल क्रिएट नहीं हो रहा होगा। तो एसएफ, नॉट एसएफ, सेशन फैक्ट्री। ओके, सेशन फैक्ट dot we will say open session। Okay, and then we will say session
I will say ACS. I will say ACS dot begin transaction. Okay. ACS dot get transaction dot commit. Okay. एंड अभी चेक करते हैं कि डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम वापस से बिल्ड ऑटोमेटिकली टिक कर देते। ओके, बार बार हमें बिल्ड प्रोजेक्ट ना करना रहे इसलिए। एंड आई विल से रन एज ऑन सर्वर। प्रोजेक्ट रनिंग एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ओके, सो नाउ डेटाबेस के अंदर में मे बी अभी टेबल क्रिएट हो गया होगा। यस गाइस, टेबल क्रिएट हो गया। ओके, सो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमने डेटाबेस का इंस्टेंस अभी तक के वहां पे यूज नहीं करा था। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में डेटाबेस का इंस्टेंस यूज नहीं करा था, इसलिए टेबल क्रिएट नहीं हो रहे थे। ओके, हमने यहाँ पे डेटाबेस का इंस्टेंस यूज करा, hibernate.cog फाइल लोड हो गई, इसलिए अभी उसने टेबल क्रिएट करा। अभी तक के हमने यूज नहीं करा था गाइस। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमने ये यूजर्स टेबल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो यूजर्स टेबल के अंदर में हम कुछ कपल ऑफ यूजर जो है हम ये ऐड कर देते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्रिएटेड डेट। ओके, एक हम क्रिएटेड डेट यहाँ पे आज की क्रिएटेड डेट ले लेते हैं। ईमेल, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से ओके r@gmail.com मॉडिफाइड। आज की डेट ले लेते हैं। नेम ऑफ द यूजर, like let's say I write the name of the user like Nish Nandurkar, I write here. Okay, Nish Nandurkar, and the password, okay, suppose I said password 1234। okay, पासवर्ड जो है ये आप 1234 ये जो डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस के अंदर में पासवर्ड। ओके, सो इसके लिए आप पासवर्ड जो है डेटाबेस में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पासवर्ड डेटाबेस में आप एनक्रिप्टेड पासवर्ड रखिए, ताकि आपका पासवर्ड डेटाबेस किसी ने ओपन भी करे तो भी आपका पासवर्ड किसी को पता ना चले। तो आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में आप डेटाबेस डेटाबेस के अंदर में आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में आप पासवर्ड सेट करिए। तो डेटाबेस के अंदर में एनक्रिप्टेड फॉर्म में आप पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए आप MD5 क्लास यूज कर सकते हैं। और उसके लिए मैं स्पेशली एक आपके लिए सेशन लेके आऊंगा कि हाउ टू यूज MD5 क्लास। ओके, जावा MD5 क्लास प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके लिए हम MD5 क्लास यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल में हमने यहाँ पे पासवर्ड जो है 1234 सेट करा है। स्टेटस आई विल से 1 and I will click on go. Okay, this will be the first user, and now I will add one more user here. I will, okay, say 18th of March. Okay, and then I will say n@gmail.com. Okay, or s@gmail.com modified on the same date. Name of the user I will say Saishri Nandurkar. Okay, and then password I will say 4321, and the status I will say 1, and click on save. So now you will see guys, so in our table, okay, we have two users. So right now हमने क्या करा, मैन्युअली यहाँ पे यूजर्स टेबल के अंदर में हमने टू यूजर हमने यहाँ पे ऐड करा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप साइन अप वाला फॉर्म बना सकते हो। साइन अप फॉर्म से आप साइन अप करने के लिए बोलिए यूजर को कि आप साइन अप करें। देन साइन अप करके जो भी यूजर ईमेल एंटर करेगा, वो ईमेल पे आप पासवर्ड भेजिए। तो वो ईमेल साइन अप थ्रू कैसे भेज सकते, तो उसके लिए भी हम एक स्पेशल सेशन हम स्पेशल सेशन बनाऊंगा। तो वो आप सेशन थ्रू आप देख सकते कि जावा थ्रू आप ईमेल कैसे भेज सकते हैं। तो ये भी हम इसके लिए भी हम एक सेशन बनाएंगे साइन अप के लिए। ओके, बट राइट नाउ हमने क्या करा, मैन्युअली यहाँ पे दो यूजर टेबल के अंदर में हमने ऐड कर दिया। आप साइन अप वाला फॉर्म बना के आप साइन अप करके यूजर को
यूजर का डिटेल जो है ये आप यूजर्स टेबल के अंदर में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैन्युअली 2 यूजर हमने ऐड कर दिए। सो यही यूजर हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है गाइस। सो यूजर्स आर कमिंग, ओके, यूजर्स डिटेल्स ओके आर कमिंग फ्रॉम विच पेज, लॉगिन पेज से यूजर का डिटेल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए नेम जो है वो यूजर नेम है एंड पासवर्ड जो है आईडी है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में, लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में हम यहाँ पे आ रहे हैं रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, वन पैरामीटर इज कमिंग, विच पैरामीटर इज कमिंग, यूजर नेम पैरामीटर इज कमिंग, ओके। सो नाउ उस ये हम रिसीव कर लेते हैं स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग यूजर नेम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। एंड नाउ द सेकंड वन पैरामीटर इज कमिंग, विच पैरामीटर इज कमिंग, पासवर्ड, एंड द पासवर्ड पैरामीटर ओके इज कमिंग। सो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड पैरामीटर हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें डेटाबेस के अंदर में रखे हुए यूजर नेम पासवर्ड से हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। मैं थोड़ी देर के लिए ये जो डेटाबेस वाला जो कोड जो है इसके लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। नाउ देन आफ्टर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सर्विसेज के अंदर में हमने सिटी सर्विसेज, पर्सन सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज लिखा है। एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास, जावा क्लास लिख लेते हैं एंड आई विल से यूजर सर्विसेज गाइस, यूजर सर्विसेज और लॉगिन सर्विसेज। यू कैन राइट लॉगिन सर्विसेज, लॉगिन सर्विसेज ओके, लॉगिन कंट्रोलर से मैच होता हुआ लॉगिन सर्विसेज। एंड लॉगिन कंट्रोल सर्विसेज के अंदर में हम यहाँ पे @सर्विस लिखते हैं और इसके अंदर में हम एक मेथड लिखते हैं पब्लिक, ये रिटर्न करेगा यूजर का ऑब्जेक्ट ओके, और गेट यूजर, गेट यूजर ओके, गेट यूजर। और इसे बोलते कि आपको स्ट्रिंग ईमेल आएगा और स्ट्रिंग आपको पासवर्ड आएगा ओके। ये 2 पैरामीटर आपको रिसीव हो गए गेट यूजर मेथड को। एंड देन हमें डेटाबेस का इंस्टेंस होना है, इसके लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट्स पैरेंट इंटरफेस। और यहाँ पे जो हमने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में जो हमने डेटाबेस का यहाँ पे इंस्टेंस यूज करा था ओके, ये कोड जो है मैं यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ ओके। we need to import this one okay, org.hibernate.classic. I will say begin transaction and commit, in between begin and commit we will write our validated code। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे acs dot create query and we need to say query from which table, users okay, from we no need to say select star and something so on, just okay hibernate through हमें from से query लिखना है okay, from which table, users, where I will say जिसका status 1 हो okay, and email column okay, we have email column there okay, we can verify guys, email column okay, email column की value in between single quote double quote plus we will say email ओके, ये ईमेल। आप चाहो तो इसको कंफ्यूज अगर हो गए तो आप यूजर नेम कर दो, हम यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे ओके। एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस ओके, वी नीड टू से पासवर्ड। सो दिस विल बी द क्वेरी। ये क्या करेगा, डेटाबेस में जाके ये यूजर नेम से मैच होता हुआ, ये पासवर्ड से मैच होता हुआ रिकॉर्ड फेच करके लाएगा। वी नीड टू रिसीव ओके, वी नीड टू रिसीव, हमें क्वेरी के अंदर में हमें इसे रिसीव करना है ओके, वी विल से क्वेरी एंड देन हम क्वेरी डॉट ओके, क्वेरी डॉट वी नीड टू से लिस्ट, इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड देन ये लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके वी विल से लिस्ट, एंड देन लिस्ट को बोलते हैं कि हमें यूजर्स फॉर्म में ऑब्जेक्ट होना, और आई विल से यूजर लिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसके अंदर में मल्टीपल और सिंगल ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो मे बी सिंगल ही ऑब्जेक्ट आएगा बिकॉज ये यूजर नेम एंड पासवर्ड से रिलेटेड रिपीटेड ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस के अंदर में नहीं रहेगा, टेबल के अंदर में नहीं रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ यूजर लिस्ट, ओके नॉट, ओके यूजर लिस्ट, ओके इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, ओके इज एम्प्टी नहीं है तो नॉट लगा दी हमने इसे, इज एम्प्टी नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं कि यूजर लिस्ट का, ओके इंडेक्स 0 वाला ऑब्जेक्ट होना, ओके इंडेक्स 0 वाला ऑब्जेक्ट होना, और वो ऑब्जेक्ट जो आप रिटर्न कर दीजिए बिकॉज हमने रिटर्न टाइप यूजर लिखा है। एल्स, एल्स, ओके एल्स वी विल से रिटर्न, ओके null, so either it will return user object or it will return null। null रिटर्न करा इसका मतलब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी यूजर आपके टेबल के अंदर में नहीं है। और ये कमिट वाली लाइन जो है, ये कमिट वाली लाइन हम यहाँ पे इफ के पहले लिख देते हैं, रिटर्न करने के पहले हम कमिट कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से क्या करें, आप यूजर रिटर्न कर दें। सो नाउ देन आफ्टर हम लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में आते, और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर से यहाँ से हम यूजर सर्विसेज, ओके यूजर सर्विसेज हमें पैरेंट कंट्रोलर के अंदर में यहाँ पे यूजर सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। सो वी विल से यूजर सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, user services, no login services, okay sorry guys, so we have login services, login services we will say login service, okay एंड इसे हम कर देते @auto add, ओके ताकि स्ट्रिंग इसे ऑटो ऐड करते हैं। एंड नाउ देन आफ्टर हम आते हैं लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में, और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर से हम क्या करते हैं, यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, ओके पैरेंट कंट्रोलर नॉट यूजर सर्विस, लॉगिन सर्विस। सो हम यहाँ पे बोलेंगे लॉगिन सर्विस, ओके डॉट गेट यूजर, एंड वी विल पास यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम जाएगा ईमेल के अंदर में, और पासवर्ड जाएगा पासवर्ड के अंदर में, एंड वहां से यूजर्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ओके आइदर दिस ऑब्जेक्ट विल बी, आइदर दिस ऑब्जेक्ट विल बी नल और यूजर ऑब्जेक्ट, ओके विल रिटर्न, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, विल रिटर्न ओके नल और ओके यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर्स ऑब्जेक्ट। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इफ यूजर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर नॉट इज इक्वल टू नल है, इफ यूजर ऑब्जेक्ट नॉट इज इक्वल टू नल है, तो आपको कौन से पेज पे जाना है, इंडेक्स पे, अदरवाइज कौन से पेज पे जाना है, लॉगिन पे। तो लॉगिन पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m.put, m.put, ओके और मैं बोलूंगा एरर मैसेज, और मैं बोलूंगा यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ओके एंड साथ में बोलते हैं प्लीज ट्राई अगेन, ओके समथिंग लाइक हम मैसेज पास कर देते हैं। अदरवाइज ये कहाँ पे जा रहा है, इंडेक्स पे जा रहा है। तो इंडेक्स पेज पे आपको कौन से पैरामीटर लेके जाने हैं, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ कोड करा था। इंडेक्स पेज पे /URL पे आपको कौन से पैरामीटर लेके जाना है, आपको लेके जाना है एक्शन वैल्यू, आपको लेके जाना है बटन वैल्यू, आपको लेके जाना है पर्सन की लिस्ट। गॉट इट गाइस, बिकॉज हमने यहाँ से लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स का व्यू ओपन कर रहे थे, बट अभी हम लॉगिन पेज पे जा रहे हैं /URL से। तो ये सब जो है ये हम यहाँ से कॉपी करते, एंड देन हम लॉगिन कंट्रोलर से लॉगिन हो जाने के यहाँ पे, ओके रिटर्न मॉडल एनवी होने के पहले, ओके इसे ओपन कर देते, एक्शन वैल्यू भेजना है हमें,
ओके, बटन वैल्यू भेजना हमें, पर्सन लिस्ट भी भेजना हमें, एंड देन सो ऑन चीजें हमें यहाँ पे भेजना है। ओके, कौन सी पेज पे भेजना है हमें? इंडेक्स पेज पे। सो ना हम ये चेक करते गाइस। तो सबसे पहले हमने एरर मैसेज लॉगिन पेज पे लिखा है क्या? तो एरर मैसेज लॉगिन पेज पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एरर आया है करके। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओके एक और थोड़ा सा रो बना लेते हैं, और एक यहाँ पे ओके इन बिटवीन S3 एंड S3 ओके आई विल से क्या बोलेंगे? एरर मैसेज विच की इज कमिंग, एरर मैसेज, एरर मैसेज की आ रही है। आप चाहो तो इसको क्लास लगा सकते हो। ओके, एंड द क्लास नेम आई विल से टेक्स्ट, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, टेक्स्ट हाइपन डेंजर। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो चेक करते हैं। एंड हम कुछ यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करके देखते हैं। Now you can see guys, we are getting this invalid username and password. Please try again. थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो गया, हम इसे छोटा कर देते गाइस। तो उसके लिए हम यहाँ पे S6 एंड S6 कर देते। S3 थोड़ा बड़ा हो रहा है, एंड आई विल रिफ्रेश दिस। ओके, इनवैलिड यूजरनेम, दिस विल बी गुड। एंड नाउ यहाँ पे हमने दो यूजर ऐड करे हैं, r@gmail एंड s@, r@gmail का पासवर्ड जो है 1234। सो आई विल से r@gmail.com एंड द पासवर्ड जो है 1234। आई विल से लॉग इन। ओके, यू कैन सी गाइस, आप इंडेक्स पेज पे जंप कर रहे हैं, आपके पास में बटन की वैल्यू आ रही है। ओके, आप वेरीफाई करो, और फॉर्म एक्शन भी आ रहा होगा, तो इसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप व्यू पेज सोर्स में जाके आप थोड़ा सा वेरीफाई करिए कि आपको एक्शन आ रहा है क्या। ओके, सो ना कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लॉग इन कर दिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो लॉगिन हुआ यूजर, जो लॉगिन हुआ, जो भी यूजर लॉगिन हुआ है, ओके, जो भी यूजर लॉगिन हुआ है, तो हम वो यूजर का वो यूजर का लॉगिन डिटेल जो है ये सेशन के अंदर में सेट करके रख देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब आपने लॉगिन कंट्रोलर से यहाँ पे आपने ये करा, ओके, ये डिटेल भेजा, लॉगिन हो गया, तो आपको क्या करना है कि सेशन के अंदर में हम सेशन, ओके, सेशन के अंदर में हम ये डिटेल सेट करके रख देते हैं, ताकि हम फ्यूचर में ये यूजर का, जो भी यूजर ये लॉगिन कर रहा है, ओके, गेट सेशन, ओके, तो ये यूजर का हम डिटेल यूज कर सके, तो आई विल स्टोर दैट यूजर डिटेल ऑन सेशन। ओके, इन सेशन गाइस, http session, and I will say variable name, I will say http session, and I will say यहाँ पे http सेशन के अंदर में मैं बोलूंगा http सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। मैं बोलूंगा लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम, एंड लॉगिन यूजर नेम आपको कहाँ से मिलेगा? यूजर डॉट गेट नेम, यूजर डॉट गेट नेम, एंड वंस अगेन http सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। आप चाहो तो पूरा का पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट भी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैंने लॉगिन यूजर नेम कर दिया, और आप चाहो तो लॉगिन यूजर आप सेट कर दो, लॉगिन यूजर सेशन के अंदर में, और मैं ये यूजर का ऑब्जेक्ट, तो लेकिन आप पासवर्ड भी कैरी कैरी करोगे, तो इसलिए मैं लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन यूजर आईडी, दो ही पैरामीटर, ओके, दो ही एट्रीब्यूट मैं कैरी करता हूँ सेशन के अंदर में। और मैं बोलूंगा लॉगिन यूजर आईडी, और मैं बोलूंगा यूजर डॉट गेट आईडी, यूजर डॉट गेट आईडी, ये दो पैरामीटर हमने सेशन के अंदर में ऐड कर दिए। नाउ नेक्स्ट आपको करना क्या है? नेक्स्ट आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पे
ओके, आपने यहाँ पे हेड डॉट जेएसपी लिखा है, हेड डॉट जेएसपी, और हेड डॉट जेएसपी लिखा है आपने यहाँ पे, तो ये हमारा हेडिंग है प्रोजेक्ट का, ये हमारा हेडिंग है, और ये हमारा प्रोजेक्ट का हेडिंग है। तो यहाँ पे ये जो सिंपल क्रूड ऑपरेशन है, हम यहाँ पे यूजर का नेम डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे यूजर का नेम डिस्प्ले करते हैं। तो यूजर का नेम डिस्प्ले करने के लिए ओके, ये रो जो है, ओके, कॉल md6 एक हम यहाँ पे रो बना देते हैं। आई विल से ड्यू क्लास, ड्यू क्लास रो, एंड रो के अंदर में हम कॉलम ऐड करते हैं, और मैं ऐड करूंगा ड्यू क्लास कॉल हाइपन md हाइपन 6। ओके, और ये हमारा टाइटल रहेगा, दिस विल बी अवर टाइटल। ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, फर्स्ट 6 कॉलम के अंदर में हमने टाइटल ऐड कर दिया, एंड नेक्स्ट 6 कॉलम के अंदर में हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, ये हमारा रो है, ये फर्स्ट रो टाइटल वाला, और ये दूसरा रो। तो वेरीफाई करते हैं, तो ये आ रहा है हमारा ये फर्स्ट रो, और ये आ रहा है हमारा सेकंड रो। आप चाहो तो आप चाहो तो यहाँ पे और एक रो ले सकते हैं, और ये रो के अंदर में आप HR डिस्प्ले कर दो। ओके, तो ये आपके लिए आएगा HR बीच में। ओके, थोड़ा सा सेपरेशन कर दिया हमने। यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, और यहाँ पे आपका ये जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है उसका डिटेल डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके, ये सब जो है, मैं ये रो जो है, ओके, ये दो रो जो है, ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके, और कट करने के बाद में मैं व्यूज पे जाऊंगा, एंड न्यू, मैं जेएसपी फाइल बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा हेडर डॉट जेएसपी, ताकि मैं इसे ओके अदर पेजेस पे यूज कर सकूं, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट जेएसपी पेज पे मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो ये हमारा हेडर है, और ये हेडर को हमें ऐड करना है इंडेक्स पे, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, जेएसपी कोलन इंक्लूड, एंड विच पेज वी विल ऐड, वी विल डिस्प्ले हेडर डॉट जेएसपी पेज। इसे सिंगल लाइन कर देते, तो आपको डिस्प्ले जैसे पहले डिस्प्ले हुआ था वैसे डिस्प्ले होगा। ओके, बट एडवांटेज ये रहेगा कि आप वो header डॉट जेएसपी आप अदर पेजेस पे भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैंने प्रीवियसली आपको बोला था कि आप उसके सेपरेटली पेजेस, ये हेडर के लिए आप सेपरेट पेज बना के रखिए, आप फुटर के लिए सेपरेट पेज बना के रखिए, मेनू बार रहेगा आपके पेज पे तो आप वो सेपरेट पेज बना के रखिए, ताकि आप वो पेजेस जो है अदर पेजेस पे भी इंक्लूड कर सको। और यहाँ पे हमें आप वो यूजर जो है, जो यूजर लॉगिन हो रहा है उसका नेम हमें डिस्प्ले करना है। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, हेडर डॉट जेएसपी पे जाएंगे। ओके, और हेडर डॉट जेएसपी पे, हेडर डॉट जेएसपी पे ओके, मैं स्क्रिप्टलेट टैग थ्रू, ओके, मैं बोलूंगा सेशन। ओके, जेएसपी आपको सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, प्रोवाइड करता है, सो मैं बोलूंगा गेट एट्रीब्यूट, एंड व्हाट इज द एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम हमने ऐड करा था लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में, हमने एट्रीब्यूट नेम ऐड करा था लॉगिन यूजर नेम। तो ये जो है, मैं यहाँ पे बोलूंगा लॉगिन यूजर नेम, एंड इसे मैं बोलूंगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर नेम। ओके, हमने इसे स्ट्रिंग के अंदर में रिटर्न करा। तो हम यहाँ पे इसको बोलते ऑब्जेक्ट, तो अदरवाइज आप इसे बोल सकते स्ट्रिंग, एंड देन इसे हम कास्ट कर देंगे
स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसको टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग में पुट करने के लिए बोले। तो ये यूजर नेम आ गया, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना यूजर नेम। तो यूजर नेम लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, H4 एंड H4 कर देता हूँ, बड़ा हो रहा है, हेडिंग के साथ में मैच होगा, तो इसलिए हमने इसे छोटा कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके, यहाँ पे हमें जेएसपी टैग थ्रू, ओके, एक्सप्रेशन टैग थ्रू मैं बोलूंगा यूजर नेम नॉट इज इक्वल्स टू नल। ओके, एक कंडीशन लगा दिए, टर्नरी ऑपरेटर, इफ यूजर नेम, इसका मतलब इफ यूजर नेम नल नहीं है तो वी वांट यूजर नेम, अदरवाइज ब्लैंक। ओके, so either we will display username or we will display blank there। और उसके पहले हम बोलते हैं लॉगिन कोलन, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे लॉगिन कोलन के सामने जो यूजर लॉगिन हो रहा है उसका नेम हमने डिस्प्ले कर दिया। एंड नाउ रिफ्रेश करते, नाउ यू कैन सी गाइस हु इज लॉगिन, निश नांदुरकर। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपने जो भी यूजर लॉगिन हो रहा है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो एक चेक करते फिर से, हमारा ये लॉगिन फॉर्म आ रहा है, एंड सेकंड यूजर जो है, ये सेकंड यूजर हमारा कौन सा है, ओके, एस@, तो हम इसके लिए, ओके, s@gmail.com एंड द पासवर्ड जो है वो 4321 है। आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। नाउ यू कैन सी गाइस साइशी नांदुरकर वी आर गेटिंग। अगर निश नांदुरकर लॉगिन हो रहा है तो निश नांदुरकर, साइशी लॉगिन हो रहा है तो साइशी नांदुरकर, जो भी यूजर लॉगिन होगा वो। अभी आपको नेक्स्ट, आपके लिए मैं आपको टास्क असाइन करूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारा स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट जो है ये हम एंड करते। ओके, आपके लिए टास्क ये है कि आप यहाँ पे लॉग आउट करिए, ओके, लॉग आउट वाला कोड करिए। एंड देन सेकंड थिंग, अगर ऑलरेडी कोई यूजर अगर लॉगिन अगर है, ओके, ऑलरेडी आपके ब्राउजर पे वो यूजर लॉगिन अगर है, तो आपको ये होम पे डिस्प्ले करना है। ओके, ये होम पे डिस्प्ले करना। फर्स्ट टास्क आपको लॉग आउट वाला करना है। सेकंड टास्क आपको क्या करना है कि ऑलरेडी कोई लॉगिन अगर है, कोई भी यूजर लॉगिन अगर है, ओके, आपके ब्राउजर पे, यानी ये करंट ब्राउजर पे, तो आपको क्या करना है, ये आपको होम पे डिस्प्ले करना है। ओके, एंड थर्ड वन जो है, लॉग आउट हो जाने के बाद में, ओके, फिर से अगर आपने ये बैक बटन प्रेस करा तो फिर से आप इंडेक्स पेज पे आ रहे हो, आओगे। ओके, लॉग आउट होने के बाद में, तो आपको वो भी टास्क करना है। तो ये आपको 3 टास्क करना है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट, ओके, आप बोल सकते हैं कि आपने अच्छे से लॉगिन करा है, और जब तक कि लॉगिन नहीं होता तब तक कि आप होम पे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्प्रिंग एमवीसी वाला प्रोजेक्ट जो है, ये हमने टोटल 9 सेशन हमने डिस्कस करे हैं। आप आपका स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ओके, तो अगर आपने अभी तक के लाइक नहीं करा होगा तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, एंड देन सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आप सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, आपके फ्रेंड्स को, आपके आपके फ्रेंड्स एंड दोस्तों को, ओके, ताकि उनको भी स्प्रिंग एमवीसी के बारे में, अगर स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सके। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन, और नेक्स्ट जो टॉपिक जो रहेगा वो जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस।